I hope my screen is also properly visible to you guys. So this is now community indifference curve. All the properties that you might have studied in microeconomics first semester, it has all the properties, but since agar aapko yaad nahi hoga to I'll write everything regarding slope, regarding the convexity of this CIC. Will write everything taking into account both nation 1 and nation 2. So what are indifference curves? Anybody remembers what are indifference curves? You can unmute and speak. What are indifference curves? Nobody remembers? बजट कॉन्स्टेंट किया था, इंडिफरेंस कर्व किया था, फिर टेंजेंसी के बाद इक्विलिब्रियम निकाला था कंज्यूमर्स का, माइक्रो में ऐसे ही किया होगा ना, विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. राहुल थोड़ा डेफिनेशन हाफ नहीं है. विच मतलब यहाँ पे विच क्या है? मैम हाँ जी अविनाश. मैम जो टू कंज्यूमर गुड्स का क्या बोलते हैं वो इक्वल सिचुएशन होती है. Yeah, so basically indifference curve shows various combinations of two commodities that gives equal satisfaction to the consumer. Yeah, two goods to the consumer. But here, since we are talking about community, so we will say CIC, that is community indifference curve, shows various combinations. दो अविनाश ने join किया है. Anyways, so it shows the various people are still joining in, guys. Just 1 second. So it shows the various combinations. जब हम PPF में भी लिखते हैं तो उसमें भी हम various combinations ही लिखते हैं ना. It shows various combinations of two commodities that yield same level of satisfaction. अब यहाँ पे कंज्यूमर की जगह आ जाएगा टू दी कम्युनिटी, टू दी कम्युनिटी. और if you are talking about nation wise case, so or nation. So this is community indifference curve. As we say for the normal indifference curve, that the higher the indifference curve, the greater will be the satisfaction. अभी draw करके भी मैं दिखाऊंगी इसको. The higher the indifference curve, so similarly we say that the higher the CIC, that is community indifference curve, इसको आप exam में भी CIC लिख सकते हो. एक बार full form लिख के you can write down CIC. जैसे indifference curve में हम लोग IC लिखते हैं. So higher CIC shows greater satisfaction. So every country would like to have the combination of goods at a higher CIC, and the lower CIC shows lower satisfaction. इसके अलावा हमारा और क्या प्रॉपर्टी होता है इंडिफरेंस कर्व का? What are other properties of indifference curve? बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी माइक्रो में. Anybody? बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना इंडिफरेंस कर्व की. कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यस. सो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का रीजन क्या होता है? व्हाई इज इट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? व्हाट इज द रीजन फॉर कॉन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व? Yes, Vidisha, this is the next property, right? But what is the reason for the convex to the origin? Convexity और concavity हम लोग किस पैरामीटर के बेसिस पे बोलते हैं? Convex to the origin का reason क्या है? So when we are saying convex to the origin, so it basically means that it is going like this. This is convex to the origin. Diminishing marginal rate of substitution. Absolutely right. I don't know how many of you guys remember. MRS का full form भी I'll write down after discussing this. So convex to the origin reason is declining MRS. MRS is the slope. So slope के पैरामीटर पे हम लोग convexity और concavity को भी discuss कर सकते हैं. Then as Vidisha said, okay guys, Vidisha said the next property is that two indifference curve never intersect. इस property को बोलते क्या है? इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? इंटरसेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? इसका आप लोगों ने एक टर्म माइक्रो में पक्का पक्का पढ़ा होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? टू इंडिफरेंस कर्व. So we say that CIC must not intersect
बी यूजफुल, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या और ऐसा क्यों बोलते हैं? एनीबडी? नोबडी रिमेंबर्स? व्हाट इज ट्रांजिटिविटी? व्हाट इज ट्रांजिटिविटी? टर्म पढ़ा होगा, याद आ रहा है? कुछ ऐसी टर्म पढ़ी थी, ट्रांजिटिविटी। हम्म, यस और नो, कुछ ऐसा पढ़ा था ट्रांजिटिविटी वाला। बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, रिफ्लेक्सिव पढ़ा होगा, ट्रांजिटिविटी पढ़ा होगा। राहुल, क्या होता है फिर ट्रांजिटिविटी? बट नॉट रिमेंबर, वाह, ओके, कोई नहीं, अभी याद आ जाएगा। जस्ट लेट मी प्लॉट फ्यू पॉइंट्स। Okay, say this is the community indifference curve. One second. Say this is the community indifference curve. Ravi is joining in for nation 1. So this is for nation 1. So इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? CIC पे अगर हमारे कोई भी दो पॉइंट हैं, that is suppose N and A. So we will say that the level of satisfaction that is derived from A is equal to N, and the level of satisfaction which is on the second indifference curve, that is H, will be equal to T, and third पे हम लोगों को मिल रहा है satisfaction level of E. Now because this third CIC is higher than the second CIC, which means the satisfaction derived at the point E will be greater than the satisfaction derived at the point H and T. And since H and T lies at a higher indifference curve, that is community indifference curve 2 as compared to A and N, which means the satisfaction derived on H and T will be greater than A and N. So we say that CIC जितना ज्यादा हमारा होता जाएगा उतना ही ज्यादा हम लोगों का satisfaction level होता जाएगा. Now coming to this transitivity property, ये जो हमने लिखा है ना कि CIC हमारे intersect नहीं होने चाहिए. अभी मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, वो डायग्राम आपके सिलेबस में है नहीं, बट आपको ये रीजन क्लियर होना चाहिए कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करने चाहिए. क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि हमारा जो CIC है हायर CIC होएगा तो उसकी हायर सेटिस्फेक्शन होगी. अब एक डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ, एक सेकेंड. आप लोगों को ड्रॉ करना है कर लेना, समझाने के लिए कर रही हूँ बस, ठीक है. सो सपोज ये हम लोगों का CIC 1 है एंड से ये हम लोगों का CIC 2 है. ओके, सो सपोज वी हैव अ पॉइंट हेयर A and we have a point here N and we have a point here say B and we have a point here say C. तो अब जो हमारा CIC है उसमें क्या है? B is equal to C, CIC 1 में, और CIC 2 में क्या हो जाएगा? A is equal to N. बट आप एक चीज देखो कि हमारा जो CIC 1 का C वाला पॉइंट है वो तो हमारे CIC 2 N वाले पॉइंट से ग्रेटर है. तो यहाँ पे तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी ना जो हमने यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे लिखा है. तो अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो जिस बेसिस के ऊपर हम लोग कम्युनिटी के प्रेफरेंसेस को बोल रहे हैं कि कम्युनिटी के डिमांड प्रेफरेंसेस और टेस्ट प्रेफरेंसेस के बेसिस पे अगर ज्यादा CIC लेवल अगर हायर है, कर्व हायर है, तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा होएगा, वो वाली प्रॉपर्टी तो इंटरसेक्शन के केस में वैलिड ही नहीं रह जाती. और अगर वो इंटरसेक्शन के केस में वैलिड ही नहीं है, इसका मतलब तो हम लोग जो भी इक्विलिब्रियम अब डिराइव करेंगे आगे CIC मैप को एज्यूम करते हुए, जब वो मैप ही हम लोगों का सही नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब हम लोगों का इक्विलिब्रियम पॉइंट भी सही तरीके से हम लोग नहीं एनालाइज कर पाएंगे क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है. तो क्योंकि ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी को अपोज करता है इंटरसेक्शन ऑफ CIC, इसलिए हमने क्या लिखा? CIC मस्ट नॉट इंटरसेक्ट टू बी यूजफुल बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफाई दिस ट्रांजिटिविटी. इसके साथ ही नहीं जाता है. इज इट क्लियर नाउ? ये फिफ्थ वाले पॉइंट का मतलब क्लियर है और ट्रांजिटिविटी क्या होता है वो क्लियर है. ये डायग्राम आपको राइट वाला बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैंने रीजन एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है. गाइज, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इफ यू गाइज आर ड्रॉइंग तो ड्रॉ कर लो, पर ड्रॉ करके मैसेज करो कि क्लियर है.
Okay, it's clear only to Vidisha. What about others? Amit, Anurag, Rahul, Harsh, Sanjana, Mudit. Okay. Okay, there's one more property left. Okay, just for my information, how many people are active with phone? मतलब कितने लोग फोन से पढ़ रहे हैं? Okay, just quickly message I want to know. Rahul is from phone, Vidisha is from phone. But Vidisha, even then you are active phone से हो तब भी आप quickly reply कर देते हो. Okay, Sanjana. Others are from laptop. Most of you are from your phones. Diagrams नजर आ जाते हैं आपको इतना strain आप आंखों पे दे रहे हो. Okay. All right. Chalo, I'll just rub this left hand side because I want to draw, sorry, right hand side, I want to draw this nation 2 map also. Prior to that, there is one property missing which I will write. मैम Yes, Mudit, you are saying something? मैम वो कुछ इससे हट के पूछना था। हाँ जी. मैम आपने कहा था 12 जनवरी के बाद जो क्लास हुई थी 13 जनवरी को, उसमें हमने एंड करा था, पर उसमें मैंने रिकॉर्डिंग चेक करी 13 जनवरी की, तो उसमें तो कोई बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ आप बता रहे थे, तो वो मैंने गलत अपलोड कर दी क्या? मैंने स्टैट्स वाला अपलोड कर दिया होगा अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला आ गया है तो. मैं मुदित आज चेक करूंगी, ठीक है? ओके मैम। मैंने शायद स्टैट्स की रिकॉर्डिंग फिर अपलोड कर दी अगर ऐसा हुआ है तो. चलो क्लास के बाद देखते हूँ. ओके मैम। ओके, सो वन प्रॉपर्टी इज मिसिंग, सिक्स्थ. सो नॉर्मल है कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है. That is negatively sloped because as the consumption of one commodity will increase, दूसरी commodity का consumption reduce हो जाएगा. So we say that as the consumption of one commodity increases, the consumption of the other should reduce. एंड दिस हैपन्स वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि जब हमारा एक कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन रिड्यूस ही करेगा? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस प्रॉपर्टी? ये सारी आपने माइक्रो में पढ़ी हुई है. इसका रीजन क्या होता है? Why, when the consumption of one commodity increases, the other consumption of the other commodity will reduce? What is the reason for this? Nobody remembers. Because the satisfaction level is same on the CIC. To keep the same level of satisfaction. Now same level of satisfaction आप लोगों ने indifference curve map में भी ये पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग indifference. No, Rahul, why diminishing marginal returns to scale? Sorry, why diminishing MRS? ऐसे क्यों? उसकी वजह से तो हमारा convexity आता है ना. उसकी वजह से तो हमारा convexity आता है. हम लोग जब भी सीआईसी ड्रॉ करते हैं या इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं, इफ यू गाइस रिमेंबर, उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारा सीआईसी का शेप चेंज हो जाएगा जैसे ही हमारी टेस्ट और डिमांड प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएंगी. ये आपका माइक्रो में भी होगा. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द सीआईसी आर डिफरेंट इन शेप ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. जब भी हम लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमारी टेस्ट चेंज हो रही है या डिमांड प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, तो हमारा पूरा का पूरा इंडिफरेंस कर्व मैप एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के केस में और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व मैप एक पूरा नेशन के केस में चेंज हो जाएगा व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन.
I'm not saying income in absolute terms. I'm also saying change in the income distribution. Why I'm saying change in income distribution? Because if we are moving towards more equality of income, that means that the welfare of the consumers are increasing. सो जब भी हमारा एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज होएगा अगर इनकम, तब तो सीआईसी डेफिनेटली चेंज होएगा ही होएगा. बट अगर सेम है और सिर्फ हम लोगों का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, हम लोग टुवर्ड्स मोर इक्वालिटी प्रोसीड कर रहे हैं ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ एनी पॉलिसी और प्रोग्राम, इवन देन आवर सीआईसी's shape is going to change because our taste and demand preferences will change. Now I'll give you time to write these two lines जो मैंने ऊपर लिखी है. I just want to draw nation to CIC map. यहाँ पे मैंने x axis y axis पे नहीं लिखा, so this is good x, this is good y. Here also x, this is good y, and this is CIC1, CIC2, CIC3. Same thing I'm writing. जो normal जो points वहाँ लिखे हैं वही लिख रही हूँ. Just putting dash over here, and this is say H dash. And this is say random points ले रही हूँ E dash. So this is for nation 2. So we will write over here that A dash is equal to R dash, but it will give less satisfaction than H dash, and it will give less satisfaction than E dash, because E dash is lying on CIC3, H dash is lying on CIC2, and A dash and R dash is lying on CIC1. So indifference curves are not necessarily parallel to each other. No, Bidisha, it is not necessary that they will be parallel to each other. Necessary condition ये है कि हम लोगों का अगर CIC हमें यूज करना है टेंजेंसी के लिए तो वो इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए. दिस इज नॉट नेसेसरी कि वो पैरेलल होंगे. माइक्रो में हो सकता है आपने जो किया हो, मुझे क्योंकि एग्जैक्ट सिलेबस नहीं पता है, वहां पे आपने पैरेलल अजम्पशन ले लिया हो. जनरली ड्रॉ करते हैं पैरेलल ही करते हैं हम लोग. बट ये नेसेसरी, अगर आप वर्ड नेसेसरी यूज कर रहे हो देन नो, दिस इज नॉट नेसेसरी. नेसेसरी सिर्फ ये है कि यूसेज के लिए इंटरसेक्ट ना हो. Just let me know when you are done with both the pages. I'll just write down the definition of the slope of CIC in terms of this nation 1 and nation 2. Also slope की terms से मुझे कुछ 3-4 चीजें लिखनी है, and then we'll discuss 2-3 points associated with the difficulties of CIC. And once we are done with this PPF and CIC, we'll proceed towards the equilibrium in both the countries, taking into account the tangency of CIC and the PPF. Just let me know when you are done with both the pages. Guys, are you writing or you are not writing? If you are writing, at least confirm तो करो कि लिख लिया. जो इंडस्ट्रियल इको के स्टार्टिंग में बोलता वही बोल रही हूँ. मेरा मोटिवेशन लेवल आप लोगों के रिस्पॉन्स से ही आता है. आई कैन नॉट सी यू गाइज. Okay. All right. If anybody wants me to wait, please message wait. Otherwise, I'm moving on. So, just side by side ही लिख लेना. Just writing few definitions जो आप लोगों को पता होना चाहिए. So, slope of CIC we have discussed. This is marginal rate of substitution. So when we say MRSX for Y, that is marginal rate of substitution of X for Y. ये please जो लोग
अपना MA इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एसोसिएटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम का, जहां पे आपको MRx XY फाइंड करना होता है, कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, तो अगर आप लोग अपोजिट ले लोगे ना, मतलब MRS YX ले लोगे तो वैल्यू उल्टी हो जाती है, और ऑप्शंस में तो 4 MCQs आपके ऑप्शंस आते हैं, उसमें वो लोग दोनों वैल्यूज देते हैं, पक्का पक्का देते हैं। तो इसलिए मैं क्लियरली लिख रही हूँ MRS XY, दैट इज ऑफ X फॉर Y in consumption refers to the amount of Y that a nation could give up for 1 unit of X and still remain on same CIC। तो जब हम MRS XY बोल रहे हैं, इसका मतलब हम Y को गिव अप कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा आपको वैसे याद रखने का भी तरीका बता देती हूँ, जो यहाँ पे हमारा लास्ट में टर्म आएगा ना, हम उसको सैक्रिफाइस करते हैं, MRX XY। जो हमारा लास्ट में अगर MRX YX होता तो हम X को सैक्रिफाइस करते। सो जस्ट टू रिमेंबर, अगर वैसे कंफ्यूजन है तो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस ऑल्सो। तो जैसे कि हम लोगों ने अब डिस्कस, इस वाले ग्राफ की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे हमारा जो स्लोप एट n है ना, यहाँ पे जो स्लोप ऑफ n है, दिस, अच्छा आप लोगों से ही पूछती हूँ, द स्लोप ऑफ n is greater than or less than slope of A? The slope of n is greater than or less than slope at A? बताओ। Slope at n is less than or greater than the slope at A? बाबा क्वेश्चन है, n पे जो स्लोप होएगा हम लोगों का, वो ज्यादा होएगा या कम होएगा एज कंपेयर टू स्लोप एट A? प्रॉपर्टी लिखी हुई है ऊपर, कल पूरा पहले भी हमने डिस्कस किया, प्रॉपर्टी ऊपर लिखी तो है। स्लोप n स्लोप विल बी लेस देन A। रवि अभी हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया, डिमिनिशिंग MRS, हाँ, एंड मोर, स्लोप एट n विल बी ग्रेटर देन द स्लोप एट A। अभी तो हमने ऊपर लिखा है डिक्लाइनिंग MRS, ये तो डिक्लाइन कर रहा है ना, डिक्लाइनिंग MRS, या लेस देन होगी। Slope at A, for the nation 1 diagram, slope at n will be greater than slope at A। जितना स्टीप उतना ज्यादा, मैं वो उल्टा, अच्छा ठीक है। संजना आपको क्लियर हुआ, आप लेस देन किसका बोल रहे हो? क्या आप यही बोल रहे हो जो मैंने लिखा है, या आप कुछ और बोल रहे हो? एंड अगर हम नेशन 2 की बात करें, सो नेशन 2 में मैंने क्या पॉइंट्स लिए हैं, एक सेकेंड, A डैश एंड R डैश। सो स्लोप एट A डैश विल बी ग्रेटर देन द स्लोप एट R डैश। सो दिस इज फॉर नेशन 1 and this is for nation 2. Slope at A dash will be greater than slope at R dash. So we say that this is the slope of CIC. The next point associated with the slope of CIC is declining MRS. Declining MRS. So we say the more of X and the less of Y a nation consumes, the more valuable, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, अच्छे से पढ़ना ये लाइन। आई एम सेइंग द मोर ऑफ X and the less of Y a nation consumes, the more valuable to the nation is a unit of, the question is X और Y, ज्यादा वैल्यूएबल क्या रहेगा, X या Y? The more of X and the less of Y a nation consumes, the more valuable to the nation is a unit of X
चलो एक मिनट, फिल इन द ब्लैंक्स देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा आपका से x, एक मिनट मेरे को लाइन कंप्लीट करने दो, x और y एट द मार्जिन compared with a unit of x और y. So first में क्या आएगा, second में क्या आएगा? Just write x comma y और y comma x. This is your first fill in the blank. This is your second fill in the blank. Just write, okay, yx. Okay, Sanjana, what about others? What about others? लिखने का टाइम दे दूंगी, रिस्पॉन्ड तो कर दो पहले। विदिशा, अविनाश, राहुल, अमित, मुदित, हर्ष, अनुराग, क्या कर रहे हो आप लोग? So पता नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो। y by x, I guess, yes, yx. So this will be y in the first fill in the blank and this will be x. हमारे पास जो कमोडिटी कम होती है, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का भी क्या होता है, जो चीज हमारे पास कम होती है उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाती है ना, उतना ही ज्यादा हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने डिमिनिशिंग के केस में, प्रॉपर टेबल करके माइक्रो में आप लोगों ने किया होगा कि जैसे जैसे हम जो आई थिंक एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, जो फर्स्ट एग्जांपल माइक्रो में हम लोग पढ़ते हैं वो यही होता है कि अगर हम लोगों को प्यास लगी हुई है, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर हमको जितना सेटिस्फेक्शन देगा उतना सेकंड नहीं देगा, फिर थर्ड उससे कम देगा, फोर्थ उससे कम देगा। तो जितनी कम अमाउंट हमारे पास बचती है उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन उससे डिराइव होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो आप लोगों ने मनी की टर्म्स में भी किया होगा, कार्डिनल यूटिलिटी किया होगा ना, कार्डिनल यूटिलिटी याद होगा आप लोगों को। सो दैट वाज एन इंप्रूवमेंट ओवर दी, सॉरी दिस ऑर्डिनल यूटिलिटी। ये दो दो थ्योरीज थी माइक्रो में, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, इफ यू गाइस रिमेंबर। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मनी की टर्म्स में भी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो फिर उसकी जो कदर है वो रिड्यूस हो जाती है, जितना हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करेंगे, और जैसे जैसे पैसे कम होते जाते हैं, हम लोगों के पास कैश मनी कम होता जाता है, उतना ही उस मनी से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती जाती है। सो यहाँ पे वही चीज लिखी है ना, द मोर ऑफ एक्स and the less of y a nation consumes, the more valuable to the nation is a unit of y at the margin compared with a unit of x. Now this is clear. I hope the slope is clear to all. Just write this down, let me know when you are done. Yes, ma'am, done and clear also. Okay, Rahul. Okay, I hope you are done writing. If anybody wants me to wait, please let me know. Otherwise, I'll just write 3 points which are associated with the CIC. There are certain difficulties जहाँ पे हम CIC को इतना properly use नहीं कर सकते हैं, but in difficulties को avoid करते हुए हम CIC को use करते ही करते हैं. So we should know what are the difficulties associated with the CIC. If anybody wants me to wait, please message wait. Otherwise, I'm moving ahead. So there's 3 points. Some difficulties. With CIC. Number 1, ऐसे जैसे हमने income distribution की बात की, so a different income distribution, all this we have discussed, just writing down, a different income distribution would result in a completely new set of CICs which might intersect with previous CICs.
जब हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा या एब्सोल्यूट इनकम चेंज हो जाएगा, तो जिस बेसिस पे हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस किया होगा ना, प्रीवियस एनालिसिस किया होगा, सीआईसी को कंसीडर करके इक्विलिब्रियम डिराइव किया होगा, हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोगों का अगर 10 साल पहले ये सिचुएशन था और अब हमारी ये सिचुएशन हुई है, सीआईसी मैप्स विल चेंज। सो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन वी यूज CICs टू डिराइव द equilibrium level, to derive the tangency, to derive that satiation point, to derive that satisfaction level. This is the problem that arises. Next point is trade. जैसे हम लोगों ने कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशंस में, जब हम लोग इससे, ये अभी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जब हम लोग कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेड की वजह से, डोंट ड्रॉ दिस डायग्राम, जस्ट रिमाइंडिंग यू, कि ट्रेड की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर रहे, सॉरी बिना ट्रेड के हम लोग अपने पीपीएफ पे यहाँ कंज्यूम कर रहे थे, तो ट्रेड के साथ हम लोगों का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो गया था। सो ट्रेड की वजह से भी हमारा जो रियल इनकम है ना वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से हमारे सीआईसीज में हम हायर पहले अगर हम लोग यहाँ पे थे तो अब हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि हम लोगों का जो सीआईसी है वो ये पैरेलल ना होके वो कुछ ऐसा सीआईसी हो जाए, तो इस केस के अंदर भी हमारा पुराने के साथ तो इंटरसेक्ट हो गया ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों के जो सीआईसीज हैं वो कितने यूजफुल है वो हमारा डाउटफुल केस है। आई एम रबिंग दिस डायग्राम, ये आपके सिलेबस में है नहीं, किसी को ड्रॉ करना है तो कर लो, समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था। So I said that trade will change the distribution of real income in the nation and may cause indifference curves to intersect. This is the second difficulty. Last point left is, कल विदिशा ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था which I don't remember exactly, कल या परसों, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, पर मैंने कहा था कि हम यहाँ पे कार्डोर हिक्स कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये मुझे याद है। मैंने कहा था हम वो कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे। सो कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल मैं रिपीट कर देती हूँ। दिस एक्चुअली सेज कि अगर हम लोगों ने कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम चेंज किया है, सो उससे जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है टू दी गेनर्स, और वो बेनिफिट अगर जो गेनर्स है वहां से हम कॉम्पेंसेट कर सकते हैं जो लॉस हो रहा है लूजर्स को, और फिर भी हम एक हायर लेवल पे हैं, तो हम लोगों को वो पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। बट इस केस के अंदर अगर हम लोग सीआईसी यूज कर रहे हैं और कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर हम हायर सोशल लेवल पे जा रहे हैं कॉम्पेंसेट करने के बाद भी, तो वो पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। बट फिर से वही हमारा इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। विदिशा, डू यू रिमेंबर मैंने आपको कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था? आई थिंक आपने जो मुझसे आयरन ओर वाला क्वेश्चन पूछा था उससे एसोसिएट करके मैंने किया होगा, जब डोमेस्टिक डिमांड की कुछ बात हो रही थी, जितना मुझे याद आ रहा है। या ऑलराइट, सो आई जस्ट राइट दिस प्रिंसिपल। इसके भी ये प्रिंसिपल एक्चुअली पूरी एक बहुत बड़ी थ्योरी है which again is not in your syllabus because you are doing BB, not economics honors, but it's a very interesting theory. So I'll just write the definition. The nation benefits from trade, यहाँ पे ट्रेड यूज किया है बट एक्चुअली ये किसी भी प्रोग्राम और पॉलिसी के लिए होता है। इफ द गेनर्स वुड बी बेटर ऑफ, इफ द गेनर्स वुड बी बेटर ऑफ, दैट इज बेटर ऑफ का मतलब है रिटेन सम ऑफ देयर गेन्स, रिटेन सम ऑफ देयर गेन्स even after fully compensating the losses of the losers. So these are the difficulties with CIC, but हम इन difficulties को acknowledge करते हुए और avoid करते हुए अपना equilibrium derive करेंगे. So just write this down. Let me know
और एक चीज बताना मुझे, दो डायग्राम, अच्छा एक चीज सुनो पहले प्लीज, मुझे दो डायग्राम्स करने हैं अभी. सो द नेक्स्ट दैट वी हैव टू डू इज, लिख लेना, टाइम दे दूंगी, फर्स्ट प्लीज लिसन. नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, वी हैव टू डू इक्विलिब्रियम इन आइसोलेशन. ठीक है, मतलब जैसे आप लोगों ने पीपीएफ सॉरी बजट कॉन्स्ट्रेंट और आईसी को यूज करके इक्विलिब्रियम निकाला होगा टेंजेंसी के थ्रू, वैसे ही हमको नेशन 1 और नेशन 2 का आइसोलेशन में निकालना है, मतलब विदाउट ट्रेड. और उसके बाद हम बोलेंगे कि वो ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड के बाद फिर उनके गेन्स देखने हैं. तो हमें ये 4 डायग्राम्स करने हैं, और 4 मैं एक साथ इसलिए करवाना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को कंपैरिजन क्लियर हो जाए विद ट्रेड एंड विदाउट ट्रेड का. तो मुझे ये बताओ कि ये आज करना है या कल करना है. 15 मिनट का टाइम है हमारे पास. व्हाट डू यू वांट टू डू? आई डोंट वांट कि मैं जल्दी जल्दी कराऊं, पर अगर आप लोगों को लग रहा है आपका कंसंट्रेशन अच्छे से मेंटेन हो रखा है तो मैं इसको फिर आज ही करा दूंगी. या सिर्फ इक्विलिब्रियम एंड आइसोलेशन वाला कर लेते हैं, इफ यू गाइस कैन होल्ड योर पेशेंस फॉर एंड अटेंशन फॉर 15 मिनट्स. सिर्फ या तो आइसोलेशन वाला कर लेते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से, क्योंकि उसमें भी हमें 2 डायग्राम्स करने हैं, आइसोलेशन में भी. चलो लिख लो एक बार, पहले ये लिख लो, फिर रिस्पॉन्ड करना, लिखने के बाद रिस्पॉन्ड कर देना. अच्छा, कल की क्लास जो लोग आज हैं, एटलीस्ट कल की क्लास मिस मत करना. जो फर्स्ट 2 डायग्राम्स हैं वो तो सिंपल डायग्राम्स हैं, बट जो नेक्स्ट 2 ट्रेड के बाद वाले डायग्राम्स है ना, उनमें बहुत ज्यादा कर्व्स हैं. हो सकता है आपको बाद में समझने में प्रॉब्लम हो. रिकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली आपके पास हमेशा रहेगी, बट इवन देन आई वुड से कि क्लास थोड़ा मत करना, कोशिश करना मिस ना हो. Just let me know when you are done with this and let me know what you want to do. स्टिल राइटिंग, स्टिल राइटिंग, इतना तो लिखा नहीं है. अच्छा ओके अविनाश. What about others? चलो कल कर लेंगे, कोई नहीं. Just write this down please, but don't miss tomorrow's class. मुदित मैं अभी देख ही लेती हूँ, इनफैक्ट मैंने क्या अपलोड किया है ना उसमें क्लासरूम में, गलती से हो गया होगा या तो. आई जस्ट चेक. यस मैम, क्योंकि उसमें जो क्लास कोड भी दिखा रहा है ना, वो हमारी क्लास कोड का है ही नहीं, वो जेड से कुछ है शायद से. ठीक, हाँ हो सकता है गलती से हो गया बेटा, एक सेकंड. हाँ ये आपका नहीं है, दिस इज नॉट योर्स, दिस इज बाइनोमियल. आई जस्ट एडिट इट. So what date was it? 18th. 13th 14th का होगा. मुदित उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया उस दिन. हाँ वो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई मुदित. मैंने क्लास में कहा था कि ये आज क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है, कोई आया भी नहीं है, वो क्लास ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी बेटा. मैम उस दिन हुआ क्या था, मतलब उस दिन मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ था. उस दिन स्मॉल कंट्री केस तो आपने पहले किया होगा ना, आई थिंक स्मॉल कंट्री केस पे ही मैंने एंड किया था उससे पहले वाला लेक्चर. सो स्मॉल कंट्री केस में आई जस्ट ड्रॉ एंड टेल यू, द डायग्राम इज नॉट इन योर सिलेबस. स्मॉल कंट्री केस हमने अगर कुछ ऐसा ड्रॉ किया है लाइक दिस, और फिर हमने इसका सप्लाई कर्व ऐसे किया था ना, ऐसे करके हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ किया था, और हमने डिमांड यहाँ ड्रॉ की थी.
यहाँ तक तो क्लियर होगा ना मुदित? यस मैम, क्लियर। तो इसके बाद हमने कहा था कि अगर एक स्मॉल कंट्री है जिसका डिमांड रिड्यूस हो जाता है, तो एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है कि उसका जो डिमांड है वो ऐसे इतना ज़्यादा शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि जो डिमांड ऑफ व्हीट इन यूके है वो रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से जो टोटल डिमांड ऑफ व्हीट है वो शिफ्ट हो गई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो अब जब यहाँ पे आई थिंक ये 180 था, जब यहाँ पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करता था यूएस, अब क्योंकि जो डिमांड है वो कम हो गई है व्हीट की, तो वो कुछ डिमांड कम हो गई है, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन क्लॉथ का भी अपने आप करेगा, क्योंकि अब यूके जो है वो इतना ज्यादा व्हीट डिमांड नहीं कर रहा है। तो वो जो हमने बोला था कि वो 1-on-1 एक्सचेंज है, शायद 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट फॉर 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ बोला था, जितना मुझे याद है। तो अब जब ये 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट यूके डिमांड ही नहीं कर रहा है, जब सपोज वो करी 30 यूनिट्स ऑफ व्हीट रहा है, तो वो 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ थोड़ी ना देगा यूएस को, वो सिर्फ 30 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ देगा। तो उस केस के अंदर हम लोगों का जो क्लॉथ का प्रोडक्शन होएगा, वो कुछ ना कुछ क्लॉथ का प्रोडक्शन यूएस भी करेगा। तो स्मॉल कंट्री केस में इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो जाता है। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन मतलब कि यूएस कंप्लीटली, यहाँ पे हमने व्हीट लिया था, शायद नहीं, हाँ यहाँ पे व्हीट था और यहाँ पे रिलेटिव प्राइस था, तो यूएस कंप्लीट स्पेशलाइजेशन व्हीट में नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ अपनी रिसोर्सेज को क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए भी रखेगा। और यहाँ पे रैंडम ले रही हूँ, सपोज 120 यूनिट्स ऑफ व्हीट ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अब तो उसको 70 यूनिट ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, सिर्फ 30 यूनिट्स करना है। तो वो कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज को सेव करके क्लॉथ में यूज करेगा और अपना क्लॉथ का प्रोडक्शन भी करेगा। पहले अगर हम 180 बोल रहे थे तो हम ये बोल रहे थे कि यूएस 0 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहा है। ठीक है ओके मुदित? मैम, ये टेस्ट में आएगा? ये डायग्राम है ही नहीं आपके सिलेबस में, ही नहीं है डायग्राम। ठीक है मैम। सिलेबस में सिर्फ थ्योरी है। आप चाहो तो एक सेकंड में आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। सिलेबस में इसकी सिर्फ एक लाइन मेंशन्ड है। जस्ट लेट मी, सिंस वी हैव 10 मिनट्स, मैं आपको एक बार बुक ही ओपन करके यहाँ से शेयर कर देती हूँ। आई जस्ट डू इट, वेट। सो इसमें आपकी रीडिंग्स में तो एक ही लाइन लिखी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें क्लियर हो तो अच्छा है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम माई लैपटॉप। मैम, उस दिन के कोई रिटर्न नोट्स भी थे क्लास में जो आपने लिखे थे? नहीं, उस दिन मैंने आईपैड से कनेक्ट ही नहीं किया था, ये डायग्राम बल्कि आज ही ड्रॉ हुआ है। ओके मैम। उस दिन आईपैड कनेक्ट ही नहीं किया मैंने। सो आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगा। सो आई जस्ट ओपन दैट स्मॉल कंट्री केस। सिर्फ हमने ये केस स्टडीज डिस्कस की थी। इनफैक्ट उस दिन तो हैंग भी हो गया था। हाँ, नाउ आई रिमेंबर दैट डे इट वाज नॉट अ गुड क्लास। ये हैंग हो गया था मेरा लैपटॉप लास्ट में जाके। हमने केस स्टडीज डिस्कस किया था। केस स्टडीज डू नॉट कम इन योर एग्जाम्स। ये वाली केस स्टडी भी डिस्कस की थी, एम्पेरिकल टेस्ट वाली। जस्ट गो, हाँ ये रहा स्मॉल कंट्री केस। आई जस्ट जूम इट इन। Yeah, I hope you can read this. So, यहाँ से देखो, यहाँ पे लिखा है दिस वुड अकर इफ द यूनाइटेड किंगडम वर अ स्मॉल कंट्री दैट स्पेशलाइज्ड कंप्लीटली इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ एंड द यूएस वर लार्जर डिड नॉट स्पेशलाइज कंप्लीटली in the production of wheat. This is known as the small country case, and the small country case shows the importance of being unimportant. Importance of being unimportant मतलब although यूके इतनी छोटी कंट्री है कि वो वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, बट उसने एक बड़ी कंट्री के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल दिया, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कि अब जो यूएस है वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं कर पा रहा है. सो दिस बेनिफिट हाउएवर इज नॉट विदाउट कॉस्ट, सिंस द स्मॉल नेशन हेयर, that is UK, faces the risk of a possible future reduction in demand for the only commodity it produces. तो ये लास्ट लाइन का ये मतलब है कि अब क्योंकि सपोज सिर्फ 30 यूनिट्स ऑफ व्हीट एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस से यूके को, पर यूएस को तो 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ चाहिए, तो यूएस क्या करेगा, कोई ना कोई अपना अग्रीमेंट या कोई डिफरेंट ट्रेड पार्टनर सर्च करेगा जहां पे वो अपना प्रॉपर एक्सचेंज कर पाए 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट फॉर 70 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, सो दैट यूएस को इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन ना करके कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करना पड़े. तो आपकी बुक में ना सिर्फ यही 3-4 लाइन मेंशन है स्मॉल कंट्री केस की, बट इसके ऊपर फिर भी मैंने आपको अच्छे से कराया है. ऐसा ना हो 3-4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और उसमें भी फिर ऐसा हो कि जितना बुक में गिवन है, ओपन बुक है, तो आप वहीं से ये 3-4 लाइनें लिख दो. 3-4 नंबर का क्वेश्चन आया, एक छोटा क्वेश्चन अटैच होके आ गया, तो एटलीस्ट आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए. ओके मैम. इज इट क्लियर मुदित? यस मैम, क्लियर. हम्म यस मैम, क्लियर. Okay.
बस उस दिन यही हुआ था, केस स्टडी डिस्कस हुई थी, एम्पेरिकल टेस्ट डिस्कस हुआ था और स्मॉल कंट्री केस डिस्कस हुआ था। और उसके बाद मेरा पीडीएफ हैंग हो गया था, पता नहीं ये वाला हैंग हो गया था। लैपटॉप वाज फाइन। सो आई जस्ट टेक योर अटेंडेंस। अच्छा, कल की आपने फोटो भेजी हुई है। सो टुडे इज 20th। अभिनव, युवराज, शुभम, रितिका, मानवी,